براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں جشن آزادی کی تیاریاں ہیں۔ اگست کا مہینہ پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی جشن یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہم تمام پاکستانیوں کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا کہ ہم یہ شو کر سکیں۔ اور پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں، ایک سبز اور دوسرا سفید، آج بھی موجود ہے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ دونوں رنگ تھے، چونکہ اس کی بنیاد رکھنے والوں میں دونوں کمیونٹیز اور دیگر بہت سی کمیونٹیز، چونکہ اس پر کھل کر بات بھی کریں گے، سب شامل تھے۔ اور آج کا پروگرام اسی تعلق سے ہے کہ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان میں مسیحوں کا حصہ۔ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کے معنی ہیں رہائی، چھٹکارا، خود مختاری، جو عام طور پر خطوں کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، اور اس تناظر میں آزادی کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی جب بات کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ غلامی کی بات کی جاتی ہے تو کلام خدا میں غلامی کی اقسام کون سی بیان کی گئی ہیں، ان کی پہچان کیا بیان کی گئی ہے، اور آزادی کی راہ کون سی بیان کی گئی ہے۔ جب ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں تو ضرور ہے ہماری نگاہ کلام خدا کی طرف بھی جانی چاہیے کہ اس آزادی جو خطوں اور انسانی حقوق کی آزادی ہے، غلامی سے نکل آنا ہے، دیگر کون کون سی غلامیاں ہیں جن پر آج ہمیں نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام خدا کیا کہتا ہے؟ آئیے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں کون کون سی غلامیاں ہیں جن سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور کلام خدا اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں غلامی کی اقسام و پہچان اور آزادی کی راہ۔ کلام خدا تعالیٰ میں لکھا ہے، پہلی جو آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان گناہ کا غلام ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ پھر لکھا ہے آدمیوں کے غلام نہ بنو، مطلب خدا کی جگہ آدمیوں کو نہ دو۔ پھر آگے لکھا ہے بدکاری اور ناپاکی کے غلام۔ پھر ہے غلامی کی روح کے غلام۔ پھر لکھا ہے ابلیس کی غلامی۔ اس کے بعد ملتا ہے غیر معبودوں کی غلامی۔ سچے خدا کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ غیر معبود ان کو کہا گیا ہے، ان کی غلامی۔ پھر خوف کی غلامی۔ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے غیر خدائی نظام کی خرابی کی غلامی۔ اگر کوئی خدا کی بادشاہت کے اصولوں سے، احکامات سے واقف نہیں ہے تو وہ دنیا کے نظام کا غلام ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جس کسی کی بھی تابعداری کرتا ہے وہ اس سے مغلوب ہے، اس کا غلام ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی باتیں بدلتی نہیں۔ تو ہم نے کلام میں سے دیکھا ہے کہ کتنی قسم کی غلامیاں ہیں۔ تو یہاں پر سورہ یونس ہے، یہاں پر لکھا ہے خدا کی باتیں بدلتی نہیں، تو غلامیوں سے نکلنا ضروری ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اور اس کی
बातों को कोई बदलने वाला नहीं। ये 18वीं सूरत है और 27वीं आयत है। अगर आयत आगे पीछे हो जाए सूरत, तो ये अलकाफ सूरत है, क्योंकि कभी कभी लिखने में हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गुलामियों से निकलने और गालिब रहने का तरीका जो बयान किया गया है वो क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे, क़यामत तक फाई को गालिब रखूंगा। खुदा गुलामी में नहीं रखना चाहता, बल्कि उसने राह हमें हल दिया है किस तरह से गालिब रहेंगे आजादी में। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यहां पर फिर अगली आयत है, ईसा मसीह को भेजा और उनको अंजील अनायत की, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। ये जरूरी इंसानियत के अंदर सफात होनी चाहिए जो गुलामी की तरफ नहीं लेकर जाती, आजादी की तरफ लेकर जाती हैं। वो है शफकत और मेहरबानी डाल दी उनके दिलों में जिन्होंने अलमसीह की पैरवी की। और इसके बाद हल भी बयान किया गया है कि इन गुलामियों से जिनकी बात की गई है, हम जश्न आजादी पाकिस्तान तो मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आवाज़े खुदा क्या है, खुदा हमें किस तरफ चाहता है कि हम उसके कलाम की रोशनी में आएं और हकीकी आजादी का तजर्बा करें। और उस आजादी के बारे में लिखा है, तो और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। प्रोग्राम के आखिर में मजीद इस पर बात करेंगे। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान के कयाम और उसकी तामीर और तरक्की में मसीहों का किरदार। तो एक क्लिप देखते हैं, फिर मेहमानों के साथ इस मौजू पर बात करेंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर बात को जारी रखेंगे। मैं जब भी ये शेर गाता हूँ, I get goosebumps और I really mean it. मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन इसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ वतन प्यारे वतन। पाकिस्तान के झंडे में ये सफेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है जो क़याम पाकिस्तान से मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गिरां कदर खिदमत अंजाम देने वाले चंद अफराद के अगर नाम लिए जाएं तो सरफहरिस्त पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के साबिक चीफ जस्टिस एल्विन रॉबर्ट का नाम आता है, जिन्हें मुल्क के पहले ईसाई चीफ जस्टिस होने का एजाज भी हासिल है, जो तहरीक पाकिस्तान के अहम रुकन थे और पाकिस्तान को मुसलमानों और मसीहों के मसाइल का वाहिद हल समझते थे। इसी तरह अगर पाकिस्तान के दिफा की बात की जाए तो कई मसीही जवान वतन अजीज के लिए आला खिदमत पेश करते हुए नजर आते हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऐसे ही जवान थे जिन्होंने 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा किया। उन्हें उनकी खिदमत के बायस हिलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। इनके अलावा रिटायर्ड एयर कमोडोर नजीर लतीफ, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सीसिल चौधरी और रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम डेहार्नी भी वो मुमताज नाम थे जिन्होंने कई जंगों में मुल्क का हर महाज पर कामयाबी से दिफा किया। कई ईसाई नौजवानों ने मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। विंग कमांडर मेलविन लेस्ली मिडलकोट और स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी पाकिस्तान के वो जवान थे जिन पर कौम को आज भी नाज है। और ये तो सिर्फ चंद नाम हैं। इन मुहब्बे वतन अफराद की फहरिस्त बहुत तवील है। तालीम के मैदान में अगर देखा जाए तो बिशप एंथनी थियोडोर और डॉक्टर मीरा फिल्बस वो चंद नाम हैं जो अपनी आला खिदमात की वजह से आलमी सतह पर पहचान रखते हैं, जबकि मुल्क भर में कई ईसाई मिशनरी तालीमी इदारे भी भरपूर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खेल के मैदान में वेल्स मैथाइस, एंताउ डिसोजा, ड्रिंकन शार्प और यूसुफ यूहाना, जिन्हें अब हम मोहम्मद यूसुफ के नाम से जानते हैं, वो क्रिकेटर्स हैं जो इस मैदान में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं।
سیاست کے میدان میں اقلیتی امور کے سابق وزیر شہباز بھٹی پاکستانی سیاست کا ایک درخشندہ ستارہ تھے جو شدت پسندوں کے ہاتھوں بجھ گیا۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے جے سالک کو کون نہیں جانتا؟ یہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے جو آج بھی مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور رواداری کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح صحافت میں بھی اینتھونی ماسکرینس کا نام بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے مشرقی پاکستان کے بارے میں خبریں شائع کر کے پاکستانی عوام کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ اور اگر فوٹو جرنلزم کی بات کی جائے تو ایف ای چودھری کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے اس شعبے میں نئی تکنیک ایجاد کی۔ طب کے شعبے کو دیکھا جائے تو سسٹر روتھ فاؤ کے جزام کے مریضوں کے لیے کیے گئے کام کو کون فراموش کر سکتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان سے اس بیماری کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ موسیقی کے شعبے میں آئرن پروین، سلیم رضا، ایس بی جان، اے نیر اور بینجامن سسٹرز کی سریلی آوازیں اور ان کے سدا بہار گیت آج بھی لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہیں اور انہیں سننے والے گنگنائے بغیر نہیں رہتے۔ لاسٹ اسٹینزا ہمارے ملک کے ان سب بہادر بچوں کے لیے۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ نفرتوں کے دروازے تم بند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ ایک دن میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کی آزادی کی تقریبات میں تھا، اور جب قومی ترانہ گایا گیا تو میں اور میری بیوی، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو شاید وہ اس بات کو محسوس کرنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں۔ وطن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وطن ماں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ میرے چونکہ ذاتی تعلقات بہت سے میرے مسلمان بہنوں بھائیوں سے ہیں، اور میرے ایک محترم جو بہت مشہور کالم نویس ہیں، تقریروں میں گولڈ میڈلسٹ چوہدری این ان کا نام ہے، انہوں نے فرمایا جس ملکوں میں بھی اس وقت پاکستانی بستے ہیں وہ سرزمین ان کی دوسری ماں ہے، ایک ماں نے جنم دیا ہے، اور جن ملکوں میں وہ بستے ہیں وہ دوسری ماں ہے جو ان کی پرورش کر رہی ہے۔ تو پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے جہاں بھی لوگ ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس ملک میں وہ بستے ہیں ماں جس نے جنم دیا اس کی محبت بھی لازم، اور جس سرزمین پر بستے ہیں وہ ماں پالنے والی ہے۔ اس لیے ان ممالک میں بھی اپنی اس ماں جس نے جنم دیا ہے اس کے نام پر کلنک کا ٹھیکا نہ بنے، بلکہ اس کے ماتھے کا جھومر بن کر اس کی شان کو دوبالا کرنے والے بن جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس وقت پاکستان میں بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی صحت مندانہ نہیں ہے۔ نفرتوں کے دروازے تم بند ہی رکھنا۔ میرے جتنے بھی شوز ہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس کا بڑا مقصد یہ ہے
کہ مسلمان, مسیحی اور یہودی اور دیگر اقوام دوریاں کم ہوں, نفرتیں کم ہوں, فاصلے کم ہوں, محبت کے نئے چراغ جلیں جن سے ہمارے باطن, ہمارے گھر, ہماری مسجدیں, ہمارے مندر, گردوارے, چرچز, جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں, مساوات, احترام آدمیت بڑھے, خدا کی پہچان ہو, اس کی محبت جاگے, انسانیت کی پہچان ہو, انسانی رویے جنم لیں اور محبت کی نئی راہیں کھلتی چلی جائیں. یہی مقصد ہے فضل ربی شو کا. اور یہ تمام پروگراموں سے جب آپ ایمانداری اور سچائی سے تحقیق کریں گے یہی آپ کو نظر آئے گا. پاکستان کے قیام میں مسیحوں کا کردار, نئی نسل کو اس سے واقف ہونا ہے. آج کی جو نسل ہے اس کو بھی اس بات کا ادراک کرنا ہے تاکہ ہم جانیں کہ جو بنیاد رکھنے میں ساتھ تھے, جو تعمیر کرنے میں ساتھ ہیں, ہم سب مل کر کیسے خوشحالی کی راہ پر رہیں گے. آج میرے ساتھ دو معزز مہمان ہوں گے جو قابلیت کے لحاظ سے یکتا ہیں اور ان سے متعارف کرواؤں گا, پھر ہم اس پر بات کریں گے. ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہوں گی, اگر آپ کال کرنا چاہیں میں انکرج کروں گا پوری دنیا سے جہاں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. واٹس ایپ بھی ہمارا چل رہا ہے, اس کے علاوہ اسکائپ ہے, ٹیلی فون ہے, اگر آپ بات کرنا چاہیں ضرور بات کیجئے. سب سے پہلے متعارف کروانا چاہتا ہوں ایک ایسی ہستی کو, سیاست پر گہری نظر, سب کانٹیننٹ کی سیاست کو سمجھتے ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, صحافی ہیں اور ایک درد دل رکھنے والے انسان. میرے لیے بڑی خوشی کی بات کہ وہ آج ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. جناب محترم خالد گل صاحب. گل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں براہ راست شو فضل ربی میں. کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے, بس میرے دل میں آپ کی گفتگو سنتے ہوئے ایک بات آ رہی تھی کہ میں, جو آپ نے تو دعا کر دی, میں ایک دعائیہ قطع نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے اور تمام ناظرین کے اور زندگی ٹی وی اور فضل ربی شو کے توسط سے, کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. بہت شکریہ, بہت خوب آپ نے کہا خالد صاحب, میں شکر گزار ہوں. آپ کے اندر یہ جو جذبہ ہے, وہ کہتے ہیں سچائی کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جب انسان بات کرتا ہے بات کانوں اور دماغ کو بھی چھوتی ہے, لیکن وہ بات جو دلوں کو چھو جائے وہی سچائی کا نعرہ اور وہی بات اصل بات ہوتی ہے. گل صاحب, پہلا سوال آپ سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے اس سوال پر روشنی ڈالیے. پاکستان کے قیام میں کاسٹنگ ووٹ, پنجاب کی جو اس وقت اسمبلی تھی, مسیحوں کا کردار جس کو مورخین نے چھپایا ہے, آپ تاریخ کے اوراق کو آج کھول کر بیان کیجئے. پاکستان کی بنیاد میں کاسٹنگ ووٹ, اس کہانی کو آج بیان کیجئے. نئی نسل سننا چاہتی ہے اور جو ہماری پرانی نسلیں ہیں ان کی بھی یاد دہانی کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت ہی ہارٹ ٹچنگ پوائنٹ اور نیڈ آف دا ڈے جو ہے اس کے حوالہ سے یہ سوال کیا ہے. لیکن اس سوال کے ضمن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کروں, یہ کاسٹنگ ووٹ تو ایک فائنل سٹیج پہ آیا تھا. قبل اس کے میں آپ کو قیام پاکستان میں مسیحی قوم کا کردار جو ہے اس کی بس بہت طویل میں تو نہیں میں بتا سکتا, لیکن میں ایک آپ کو ہائی لائٹ دیتا ہوں تاکہ تاریخ اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں, جو مورخین نے نظر انداز کی ہے مسیحیوں کے کردار کو, لیکن یہ آگے چل کے کوئی بات ہوگی تو پھر میں وہ بھی بتا دوں گا. میں 3 حصوں میں یہ قیام پاکستان جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیحیوں کا کردار جو ہے وہ قیام پاکستان میں یہ کاسٹنگ ووٹ سے نہیں, اس سے پہلے 22 دسمبر 1939 کو
जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेसी वजारतों से इस्तीफे दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने ये ऐलान किया था कि आप योम नजात जो ना लाहौर में मनाया जाए, और उस योम नजात को मनाने के लिए आपके मशहूर मरूफ जगह जहाँ पे कैथोलिक नकीब का और पहले बिशप हाउस का भी हेडक्वार्टर था, सेंट फ्रांसिस चर्च स्कूल अनारकली लाहौर, वहां के नौजवान सेंट जॉन हॉस्टल जो आपके शहर के मसन बिल्कुल वो दरमियान में मौजूद है, ग्वाल मंडी के पास। ये वहाँ पे- नाजरीन मैं ये बता दूं कि गिल साहब जो इलाके बयान कर रहे हैं ये लाहौर शहर के हैं, ये लाहौर शहर की बात हो रही है। आप 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। गिल साहब जारी रखिए मैं प्लीज। 1939 की बात कर रहा हूँ सर। जी तो एफसी कॉलेज के नौजवान और लाहौर के चुगिर्द जितनी आबादियां थीं, जितने मोहल्ले थे, जितने गांव थे, उनमें जोश भरे नौजवान मसीही हैं जो हजारों की तादाद में टोलियों की सूरत में यौम निजात मनाने के लिए शामिल हुए, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है उन्होंने वहां पे नारा सरबुलंद किया। और इसमें हमने ये दावेदार हैं कि पाकिस्तान की तहरीक के लिए, क़याम पाकिस्तान के लिए मसीहों ने पहल की और उन्होंने ही पहले दिन से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बात पस मंजर आपके बयान किया सवाल है। की तरफ मैं आ रहा हूं। जी बिल्कुल शुक्रिया। क्योंकि उस वक्त के नौजवानों ने ये ठान ली थी, उनने अज़म किया था, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है। उनकी डेस्टिनेशन के लिए उन्होंने कहा था कि कदम उठते हैं तो मंजिलों की गिरा खुलती है, कदम उठते हैं तो मंजिलों की गिरा खुलती है, रास्ते दूर से दुश्वार नजर आया ही करते हैं। और उन रास्तों के मुसाफत जो दूर के थे उनके तय करते करते 23 मार्च 1940 को चौधरी चंदूलाल शेखपुरा से, मास्टर फजल इलाही रावलपिंडी से, एसपी सिंगा दीवान बहादुर साहब लाहौर से, और चूंकि वो सियालकोट के आबाई थे, इन तमाम अजला से वो टोलियां बन बन के लोग आए। और 1940 में जो तहरीक वहां पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी मिंटो पार्क में, उसमें मसीहियों का भरपूर किरदार था और अक्सरियती लोग वहां पे मौजूद थे। बहुत शुक्रिया गिल इसके साहब। बाद अगर गिल मैं साहब, चाहता हूं- गिल मैं- साहब मैं प्लीज डॉक्टर- एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं जी। चाहूंगा गिल साहब के आप थोड़ा सा तारुफ करवाइए। गिल साहब जी सर। मेरी दरख्वास्त होगी, आप एसपी सिंगा, चंदूलाल साहब और तीसरा नाम जो आपने मेंशन किया, इन लोगों का मुख्तसर तारुफ करवाइए। ये कौन थे? नई नस्ल को पता नहीं, आपने नाम लिया, ये बताइए ये कौन लोग थे? एसपी सिंगा साहब जो हैं, इनको सर और दीवान बहादुर का खिताब था उस वक्त की बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, जी जी उसमें। और इनका नाम सत्या प्रकाश सिंगा है, पर ये पसरूर के रहने वाले हैं जो आज का वो जिला सियालकोट का हिस्सा है। और उसके बाद ये 4 डेविस रोड लाहौर में मकीम हो गए। ये पंजाब इनका- असम्बली के मेंबर थे क्या उस वक्त? मैं गुजारिश कर रहा हूं, उससे पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे और लावा ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, और उसके बाद ये मुत्तहिदा पंजाब असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। बहुत और शुक्रिया। इनकी लियाकत को मद्देनजर रखते हुए मुत्तहिदा पंजाब की असेंबली ने इनको स्पीकर के ओहदे पे मुंतखब किया था। नाजरीन आप ये बात नोट कीजिए, नए नस्ल के लोग के जो स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, वो ये मसीही एसपी सिंगा मोहतरम थे। तो ये एक बड़ी बात है कि इतने बड़े कद का शख्स के उस वक्त मुतहद्दा असम्बली ने उसकी काबिलियत को जाना, उसकी शख्सियत और वकार को देखा और उसे ये ओहदा अता किया कि वो स्पीकर असम्बली हो। ये छोटी बात नहीं है। गिल साहब, दूसरे जो 2 रहनुमा हैं उनके बारे में बताइए। आपके लफ्ज की तस्हीह करना चाहता हूँ, ये ओहदा अता नहीं किया गया था, वो मुंतखब हुए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्सरियती वोट्स। देखिए जी, जब मैं अता की बात करता हूं तो वो वोटिंग के साथ ही, आपने दुरुस्त की फरमाई, बहुत शुक्रिया। दीगर जो 2 अशखास हैं इनके बारे में बताइए। मास्टर फजल लाई, इनका ताल्लुक रावलपिंडी से था, ये भी रुकन मुत्तहिदा पंजाब असेंबली थे। जी और इसके अलावा जो हमारे थे अपना सी गिबन साहब, वो भी
उनका भी ताल्लुक जो है मसीही कौम से था और वो इस मुत्तहिदा पंजाब असेंबली के रुकन थे और ये यहाँ पे 3 लोग थे जो उस वक्त मुत्तहिदा पंजाब असेंबली के अरकान थे। बहुत शुक्रिया, आपने बात साफ कर दी मोहतरम। अब आप बताइए कि जब ये फैसला हुआ, वोटिंग हुई पंजाब की तकसीम की, क्या वाकया हुआ जनाब? ये मैं चाहता हूं आप बताइए प्लीज। गुजारिश करूंगा कि आपने मुझे फरमाया ये था कि मैंने लोगों को वाकफियत देनी है जिन लोगों को, जिन अशिया का, जिन चीजों का, जिन औकात का, जिन वाकयात का और जिन हमारी जो जदोजहद के हिस्सा जात हैं उनको नजरअंदाज किया गया या नई नस्ल को या पुराने लोगों को पता नहीं है। तो उसमें मैं ये आपको अर्ज करता हूं कि इससे पहले 16 नवंबर 1942 को धोबी घाट लायलपुर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कराया जी, जिसमें वहां के गांव के नंबरदार, वहां पे विलेज मेंबर्स, वहां पे विलेज काउंसिल्स जो पंचायतें जिनको कहा जाता है, मसीही लोगों की तादाद मास्टर रुलिया राम और चौधरी चंदूलाल एडवोकेट की क़यादत में भरपूर तौर पे उन्होंने शिरकत की और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की हमायत में जद्दोजहद करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान के हिस्सा जात में, बल्कि मुत्तहिदा पंजाब में गुरदासपुर और पठानकोट के अजला से भी लोगों को मिलाया और मंगाया और जिन्होंने चौधरी चंदूलाल ने उनकी वकालत की एडवोकेट होते हुए और बाउंड्री कमीशन के सामने उनके बयानात रिकॉर्ड कराए और पाकिस्तान में शामिल होने का अंदिया दिया। बहुत शुक्रिया गिल साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं फिर आपसे दरखास्त करूंगा, ये चौधरी चंदूलाल और रलिया राम जो आपने 2 नाम लिए, इनका मुख्तसर तारफ करवाइए, ये कौन थे? मास्टर रलिया राम की रिहाइश जो थी वो लैलपुर में घंटाघर के उस इलाके में थी और वो वहां के जाने बचाने और बहुत ही असर रखने वाले उस्ताद आदमी थे और लिखने पढ़ने से, सहाफत से उनका गहरा ताल्लुक था और उनका ग्रास रूट लेवल पे भी बहुत गहरा ताल्लुक था। इसीलिए उनकी कॉल पर गांव के गांव उमड़ आए, मसीही कौम जॉब दर जॉब वहां पे आई और उस जलसा को, धोबी घाट को उन्होंने नाको नाक भर दिया। बहुत शुक्रिया। और रलिया राम साहब के बारे में? चंदूलाल के बारे में ये है कि वो यंगसनाबाद चक नंबर 371 में ननकाना साहब जो आज का जिला है वहां के वो रहायशी थे। शेखुपुरा में वो वकालत करते थे, उस वक्त शेखुपुरा जिला था और उस जमाने के बहुत से वकला से ज्यादा मशहूर थे। जबरदस्त बात हो गई। तो रलिया राम जी के बारे में बताइए। तो उसके बाद सर 20 नवंबर 16 नवंबर के जलसे के बाद अगर एवेल्युएशन के लिए हमारी मसीही कौम ने एक लॉरिंग होटल में, जो चेरिंग क्रॉस के साथ लॉरिंग होटल है, 20 नवंबर 1942 को एक वहां पे इकट्ठ रखा जिसमें फातिमा जना, जिसमें खिजरिया तवाना, जिसमें नवाब ममदूद और बहुत से मुस्लिम लीगी रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना की। बहुत शुक्रिया। गिल साहब बात कर रहे हैं, गिल साहब बात कर रहे हैं तारीख के औराक से। गिल साहब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा रुकिए बराए मेहरबानी, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम बात को जारी रखेंगे। बराए रास्त शो फजल रवी में खुश आमदीद कहते हैं। जश्न पाकिस्तान की तकरीबात के सिलसिला में मसीहों के किरदार पर यह प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी डॉक्टर डैनियल्स, मैं नुमान बात कर रहा हूँ और मेरी तरफ से आपको और सब मेहमानों को सलाम। सलाम जनाब। और डॉक्टर डैनियल, आज जो आपने मौजू रखा है ये मेरी खुशी की कहानी कि आप जिस तरह बता रहे हैं लोगों को, ये एक बहुत ही मैंने फर्स्ट टाइम देखा जब किसी नौयत के क्रिश्चियंस पे उनकी तारीख के बारे में बताया जाए। मैं बस थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा। मैं आप 2 और के नाम जरा मैं बताना चाहता हूँ। उसमें एक फजल इलाही, वो चंदूलाल और एसपी सिंगा और सीई गब्बन और जोशुआ फजलुद्दीन जैसे भी नाम जो है उसमें शामिल थे। ये 5 लोग थे जिन्होंने उसके क़याम पाकिस्तान में जो तरक्की, उसके क़याम पाकिस्तान में जो अहम किरदार अदा किया है। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हमारे जो निसाब है, आज मैंने मैट्रिक ऐसे तक की हुई है वहाँ पे तक, लेकिन मैंने आज तक ना मुताला पाकिस्तान, ना सोशल स्टडी, ना उर्दू में कभी ऐसा कोई मजमून मैंने बहुत पढ़ा
لیکن آج تک مجھے ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے قیام پاکستان میں نصاب میں سے کیوں مسیحیوں کے کردار کو اگنور کیا گیا۔ آج اگر ہم بتاتے ہیں، ہم سے وہاں پہ یہ لکھا ملتا ہے کہ ہم نے بہت قربانیاں دی، یہ اس نام پہ بنا اور یہ اس نام پہ بنا، قائد اعظم نے یہ کیا۔ اصل جو بات ہے وہ مسیحیوں کے کردار کو کیوں نہیں وہاں پہ اجاگر کیا جاتا۔ ہمارے نام جو ہے، شکریہ نعمان بھائی، آپ کا سوال یہ آ گیا کہ کیوں مسیحی جدوجہد کرنے والے تمام رہنماؤں کا نام نہیں ہے، یہی ہے آپ کا سوال؟ جی، اور سر بہت شکریہ آپ کا۔ اور سر ان 5 کے جو ہمارے ہیرو ہیں اور زیادہ، لیکن کسی کا بھی نام جو ہے وہ نصاب میں نہیں ملتا۔ جی بات کرتے ہیں، ابھی میرے ساتھ ریسرچ اسکالر موجود ہیں، ان سے میں یہ سوال پوچھوں گا گل صاحب جب اپنی بات ختم کر لیتے ہیں۔ کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں نعمان صاحب؟ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ شو کیا اور آپ یہ جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے مسیحیوں کا تعلیم کا، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اور میری طرف سے بہت شکریہ۔ نعمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، بات کر رہے تھے کہ یہ جو مسیحی قائدین قیام پاکستان میں جنہوں نے جدوجہد کی، ان کا نام پاکستان کی نصابی کتب میں کیوں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ریسرچ اسکالر بھی ہیں، ابھی ان سے متعارف کرواؤں گا، ان سے یہ سوال پوچھوں گا۔ گل صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیے، ہم قیام پاکستان میں کاسٹنگ ووٹ تک آ رہے ہیں، آپ پس منظر بیان کر رہے ہیں۔ گل صاحب پلیز جاری رکھیے۔ میں ڈاکٹر صاحب پھر سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیام پاکستان جو ہے نا 3 دفعہ قیام ہوا ہے پاکستان کا، تو اس میں مسیحیوں کا یا پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کا اہم کردار ہے، میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ اور دوسری میرے بھائی نعمان صاحب نے جو جوشوا فضل الدین صاحب جو میرے دادا استاد ہیں، ان کا بھی ذکر کروں گا۔ ابھی بات ہو رہی تھی متحدہ پنجاب کی، تو متحدہ پنجاب میں جنہوں نے یہ کیا، آپ نے چونکہ سوال آپ کا کاسٹنگ ووٹ پہ تھا، تو میں نے کاسٹنگ ووٹ کے لنک کے جی جی حوالے بالکل سے بالکل گل صاحب، یہی بات ہے کہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ یہی بات آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا کہ پس منظر کیا ہے کاسٹنگ ووٹ تک آنے کا، تو آپ اسی کو جاری رکھیے، باقی سوال میں آپ سے پھر ساتھ ساتھ پوچھتا رہوں گا۔ آپ اس کو کاسٹنگ ووٹ تک لے آئیے مختصر کر کے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ 20 نومبر 1942 کو میں لارنگ ہوٹل میں جو اجتماع ہوا تھا، اس میں جو اہم بات ہے، جو تاریخ ساز بات ہے، جو وہاں پہ سٹونڈ ہوئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ اس میں ستیہ پرکاش سنگھا دیوان بہادر نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کے محمد علی جناح کا کہ آج سے محمد علی جناح ہمارا ہے اور قائد اعظم زندہ باد۔ یہ پہلی دفعہ کسی مسیحی نے نعرہ لگایا تھا، جس کو ان کو محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے میں بھی مسیحی قوم کا کردار ہے، اور مسیحی قوم کا ثبوت دیوان بہادر ایس پی سنگھا نے پہلی دفعہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں 20 نومبر 1942، میں یہ تاریخیں اس لیے آپ لوگوں کے نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو، اگر آپ کو کوئی کنفرم کرے یا کل کو کسی کا سوال بنے کہ یہ تو شاید اپنے پاس سے کرتی ہیں، میں وہ بھی کانٹیکسٹ آپ کی نظر کروں گا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ جی یہ گل تمام چیزیں۔ صاحب بہت شکریہ۔ میری درخواست ہوگی جو ہی آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں، واقعات بیان فرماتے ہیں، میری درخواست ہوگی آپ ساتھ یہ ضرور بتا دیں کہ لوگ کہاں سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو وقت ہے وہ محدود ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ کاسٹنگ ووٹ کی طرف آ رہے ہیں، تو جلدی جلدی آپ اس کو دیکھیے کہ ہمارا وقت جو ہے، میں چاہوں گا اور بھی سوالات آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایک کالر اور ساتھ ہیں ہمارے، گل صاحب ان کی کال لیتا ہوں، پھر آپ سے میں درخواست کروں گا۔ جی لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں، شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہیلو جی دوبارہ کال کریں تو پلیز پھر بتائیے گا یہ۔ ہیلو ٹھیک ہے، گل صاحب پلیز جاری رکھیے، بہت شکریہ، آپ بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب 1929 میں متحدہ ہندوستان میں کیتھولک نقیب کا لاہور سے آغاز ہوا تھا۔ یہ اردو زبان میں پہلا شمارہ تھا 15 روزہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے انگلش لینگویج میں کرسچن وائس جو نا وہ چھپا کرتا تھا۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی نے گل صاحب اس وقت کی ایک کتاب لکھی گئی ہے قائد اعظم، یہ تمام آپ کو واقعہ جات وہاں پہ مندرج ملیں گے۔ جی شکریہ۔ اب آتے ہیں ہم کاسٹنگ ووٹ کی طرف، تو میرے بھائی یہ 23 جون 1947 کو متحدہ پنجاب اسمبلی کا
अजलास हुआ था जिसमें अरकान असेंबली ने शिरकत की, जिसमें 3 मसीही अरकान असेंबली थे। एक फजल इलाही मास्टर साहब थे, मसीही सपूत रावलपिंडी से, और दूसरे थे सी गिबन साहब जो मसीही सपूत थे, और तीसरे थे सत्या प्रकाश सिंघा साहब, एसपी सिंघा जिनके नाम से जो जाने जाते हैं, वो उस वक्त असेंबली के स्पीकर भी थे। जी स्पीकर असेंबली में वोट नहीं डाल सकता, अपनी हक के राहदही का इस्तेमाल नहीं कर सकता आइन और कानून के हवाला से, जब तक दो जो वोट है वो बराबर ना हो जाएं। तो जो बराबर हो जाए वोट, तो उस पे जो स्पीकर अपनी हक के राहदही का हक इस्तेमाल करता है उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो मेरे भाई ये वाकया, ये जो हसीन वाकया जो है हमारे पाकिस्तानियों का, वो 23 जून 1947 को सरजद हुआ, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 88 वोट जो है बराबर हो गए, 88 वोट बराबर हो गए। और उसमें भी याद रहे नाजरीन और सामीन को, और आप तमाम जो टीवी वाले हैं और शो के, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इन 88 वोटों में भी 2 मसीही अरकान, फजल इलाही और सी गिबन का वोट शामिल था। तो जब ये वोट बराबर हो गए तो अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने यह बात कही कि अब जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो मेरे भाई, उस वक्त जान की परवाह किए बगैर मसीहों ने, क्योंकि उन्होंने मसीह यस्सु से कुर्बानी का दर्स लिया है, इसलिए मसीही रुकन असेंबली जो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने ये नारा बुलंद किया कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया गिल साहब, तारीख के औराक से हमें ये बता रहे हैं पाकिस्तान के मसीहों ने कहा था हम सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। ये नारा एक मसीही का था जब कास्टिंग वोट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं, फिर गिल साहब के साथ बात जारी रखेंगे। जी बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, आप बात कीजिए, ऑन एयर हैं जी, बात कीजिए। मैं पास्टर जफर गिल बोल रहा हूँ। जी जफर साहब खुश आमदीद, बात कीजिए। थैंक यू। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गिल साहब, जो खालिद गिल साहब बयान कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं टीवी के जरिए, और मैं भी इतनी उम्र गुजार बैठा हूँ, ये मैंने पहली दफा, मैं भी राइटर हूँ, शायर हूँ, कैथलिक नसीब का जिक्र किया, शादाब का मैं लिखता रहता था उनमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि इनका ये सारी जो स्पीच है ये रिकॉर्ड हो और हम लोग कॉपी बना के सीडी की पूरे पाकिस्तान में या जहां भी। जी गिल साहब, आप जफर भाई आपकी बात आ गई, आप चाहते हैं ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाए, तो हमारी वेबसाइट पर ये रिकॉर्डेड होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में भेजिए, हमारी तरफ से इजाजत है। और कोई बात आप करना चाहें? जी कोई और बात आप करना चाहें जनाब? जी मैं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मसीही कौम है और इसके साथ जो दूसरी अकलीतें हैं पाकिस्तान में, ये आज भी बहुत काम कर रही हैं, कल भी कर रही थी। लेकिन क्या वजह है कि हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं ये दिन ब दिन तारीख से हमारे किरदार को निकाल रहे हैं, और शहरों का जो नाम है, जो एक हुस्न होता है किसी मुल्क का, उसमें से उन नामों को निकाल के अपने नाम दे रहे हैं शहरों को। क्या कोई क्रिश्चियन ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा ग्रुप है जो? जी शायद कुछ टेक्निकल खराबी है पास्टर साहब की कॉल में। पास्टर साहब आपका पैगाम पहुंच गया है, मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं, अभी मुतारिफ करवाता हूं, इसका जवाब वो देंगे, उनकी बहुत गहरी नजर है। गिल साहब कास्टिंग वोट की बात कर रहे हैं कि वोट बराबर हो गए थे और मसीहों का जो फैसला कुन वोट था वो, गिल साहब कैसे, किस तरह एसपी सिंघा ने अपना वोट देकर पाकिस्तान के कयाम को मुमकिन बना दिया, बात कीजिए।
उन्होंने देखो, ये बात कहते हुए मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ, वो ये कि उन्होंने कहा था सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। अपना कास्टिंग वोट बनाकर मुत्तहिदा पंजाब को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। और डॉक्टर साहब, इससे थोड़ी सी मैं एक दुख की बात भी इसके साथ ही शेयर करूंगा एसपी सिंघा साहब के हवाला से, क्योंकि वो भी लोगों को नहीं पता शायद। और उनको कुछ ही दिनों बाद जब 1948 में इनको ये तंग नजरों को, और ये जो तंग नजर लोग थे और जिन्होंने मसलन जिनके अंदर तासुब भरा हुआ था, उन्होंने अदम एतमाद का वोट उनके खिलाफ पास करके और उनको स्पीकर के ओहदे से हटा दिया। यहां पर मैं ये बात, गिल साहब बहुत शुक्रिया, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मुत्तहदा पंजाब का स्पीकर वो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है, उसके दिल में कायद आजम और मुसलमानों के लिए मोहब्बत कि जो कायद ने कहा है वो कर दिखाएगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस मुल्क के कयाम में अपना हिस्सा डाला। मुत्तहदा पंजाब असेंबली का स्पीकर, और जब वो पाकिस्तान की असेंबली का स्पीकर बनता है तो उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है। हकाइक और पस मंजर जानना बहुत ज़रूरी है। गिल साहब ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तंग नजरी, तंग जहनी। लम्हा फिक्रिया है, सोचना पड़ेगा। अदम एतमाद की तहरीक आई गिल साहब, तो ये बताइए फिर क्या हुआ? वाना साहब ने वो कहा था कि इस नशिस्त पे कोई गैर मुस्लिम नहीं बैठ सकता। ये तासुब की बुनियाद वहां पे रखी गई मसीहियों के खिलाफ, और उसके बाद ये इतना दिल बर्दाश्ता हुए एसपी सिंघा साहब, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बनाया था, जिन्होंने अपना कास्टिंग वोट डालकर मुत्तहिदा पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था, जिन्होंने सीने पे गोली खाने का अहद किया था, और वो बेबाकी के साथ उन्होंने अपना वोट डाल के तो ये साबित किया था कि मसीही कौम ना झुकने वाली है, ना बिकने वाली है, ना किसी के लालच में आने वाली है, ना खौफ में रहने वाली है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ खुदावंद का खौफ है जो उनकी दनाई का शुरू होता है। और इसके साथ उन्होंने एसपी सिंघा साहब बिलाखिर अपनी वफाओं को साथ लेके 22 अक्टूबर 1948 को गोरा कब्रिस्तान जनरल रहोट के कब्रिस्तान में दफन हो। बहुत शुक्रिया। क्या में पाकिस्तान में तारीखी किरदार अदा करने वाला चिराग बुझ गया। अभी सवाल, गिल साहब बहुत शुक्रिया, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। मेरे साथ एक और बहुत ही मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, पेशे के लिहाज से मेडिकल से मुंसलिक हैं, तारीख का गहरा इदराक रखते हैं, चीज़ों की परख किस तरह की जाती है। बहुत ही गिफ्टेड, शुक्रिया उन्होंने आज वक्त निकाला। मुतारफ करवाना चाहता हूं रिसर्च स्कॉलर जनाब मोहतरम फैरर हमीद साहब। सर खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मोहतरम, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, एक कॉलर हमारे साथ हैं गोजरावाला से, इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। गोजरावाला से मोहतरम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी डॉक्टर साहब सलाम करता हूं आपको। आपकी भी सलामती हो, पाकिस्तान की सलामती हो, मसीह के नाम से बात कीजिए। बात कीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। मोहतरम, टीवी की आवाज मेहरबानी से प्लीज बंद कर दीजिए और बात कीजिए, बात कीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब सलाम करता हूं आपको। जी सलाम। तो डॉक्टर साहब आपका जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया, बात जारी रखिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में हमें अक़लियत क्यों कहा जाता है, जबकि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। शुक्रिया, अभी बात करते हैं इस पर।
और कोई बात करना चाहेंगे? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जबकि हम हमारी कौम ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो हमें और क्रिकेट क्यों कहा जाता है? ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे रहने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपकी बात पहुंच गई। हम बात करते हैं, कॉल करते रहिएगा, और दीगर जो वहां पर आपके इलाके में लोग देखते हैं वो भी कॉल करें, बताएं उनको कैसा लगता है प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। जनाब फैरर हमीद साहब, बहुत ही नाजुक सवालात हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा। पहले नौजवान ने सवाल किया था कि पाकिस्तान की तारीख में क़याम से तमीर पाकिस्तान में ये जो हमारे रहनुमा हैं, इनका जिक्र पाकिस्तान में जो निसाबी कुतुब हैं उनमें क्यों नहीं है? और फिर अभी गोजरावाला से उन्होंने फरमाया कि हमारी जो कुर्बानियाँ तो बराबर हैं, लेकिन हमें अक़लियत क्यों कहा जाता है? सर वजूहात बताइए। जनाब बहुत शुक्रिया। पहले मैं बिल्कुल मुख्तसर से जवाब दूंगा इन सवालों के कि मसीही लोगों की जो कुर्बानियां हैं, एक ऐसी फिजा बन गई है जो तंग नजरी के सिवा कुछ नहीं, कि एक अनरिटन अनस्पोकन पॉलिसी है जिसके तहत अक़लियतों के किरदार को जिक्र नहीं किया जाता या उन्हें इंतहाई कम इनसिग्निफिकेंट करके बताया जाता है। मैं ये करना चाहता हूँ कि गिल साहब ने बहुत तफसील से बहुत खूबसूरत बातें की। मैं इससे भी पीछे जाना चाहता हूँ। तहरीक आज़ादी 1857 शुरू हुई। कहा जाता है कि मिशनरी लोग जो थे, बरतानवी थे, गैर मुल्की थे, उनकी हमदर्दियां इस खित्ते के साथ नहीं थी। ये बिल्कुल ही गलत है। ये तंग नजरी पर मबनी नजरिया है। विलियम केरी ने बंगाल में तालीम का आगाज किया और दीगर जो मसीही मिशनरी थे, इसलिए आप देखते हैं कि बंगाल में बहुत सारे लोग जो थे बहुत तालीम याफ्ता थे। 1857 के बाद 1885 में जब कांग्रेस की बुनियाद डाली गई, उसके रूहे रवां एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट थे, सर ऑक्टेवियन ह्यूम। उन्होंने आगे होकर दूसरे साथियों के साथ, मुसलमान और हिंदुओं के साथ कांग्रेस की बुनियाद रखी। उसका मकसद उस वक्त ये था कि हिंदुस्तानियों को बरतानवी नज़्मो नस्क में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदार बनाया जाए। 1887 के कांग्रेस के इजलास में 607 में से 35 लोग मसीही थे। ये जरा दोबारा हमीद साहब, मेरी मिन्नत दरखास्त होगी, ये जरा दोबारा बताइए फिर से यही जुमला जो आप बता रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब आजादी की तहरीक की इब्तिदा हुई 1857 के बाद, कांग्रेस के क़याम में मसीही लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा था जिनकी अक्सरियत बंगाली थी। 1857 के कांग्रेस के इजलास में 607 अरकान में से 35 मसीही थे। ये बात नाजरीन, ये बात बहुत ही अहम है जो हमारे रिसर्च स्कॉलर एफ हमीद साहब बयान फरमा रहे हैं। और जो लोग तंग नजरी से इन हकायक से नजरें चुराना चाहते हैं, काश किसी के दिल में उतर जाए तारीख की बात। जारी रखिए हमीद साहब। और ये जो तादाद थी, ये मसीहियों की आबादी की निस्बत बहुत ज्यादा थी। और कांग्रेस में जो मसीही सरकर्दा लीडर थे, एस सुब्रमण्या, जो एक मद्रास से प्रोमिनेंट बैरिस्टर थे, कालीचरण बैनर्जी बंगाल से, जी.सी. नाग बैरिस्टर थे, लाहौर से थे, ब्रह्मा बंदा उपाध्याय और ये भी बंगाली थे। इन लोगों ने जब नॉन कोऑपरेशन का नारा बुलंद किया,
जो आगे चलकर मुकम्मल आजादी की सूरत अख्तियार गए। उन्होंने अपने रिसाले सिंधिया में लिखा कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए। ये मसीही थे जिन्होंने सबसे पहले नारा लगाया कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए। ये जो छोटी छोटी मामूली हकूक और रायतें फरंगी हमें देते हैं, हम उन पर थूकते हैं। हम अपनी आजादी के लिए खुद कोशिश करेंगे। ये एक मसीही का ऐलान था। इनका नाम दोबारा बता और दीजिए, रसाले का नाम, हमीद साहब, और इस शख्स का नाम जिनकी आप बात कर रहे हैं। इन रिसाले का नाम सिंधिया था और ये ब्राह्मा बंध्या उपाध्याय इन्होंने जारी किया था। बहुत शुक्रिया, जारी रखिए। और इन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए और कहा कि हम अपनी आजादी के लिए खुद कोशिश करेंगे। नारायण वर्मा तिलक ने अपनी जज्बाती नज़मों से मसीहियों को उभारा और बहुत सारे मिशनरियों ने मसीहियों को कांग्रेस में शमूलियत के लिए उभारा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ कांग्रेस ही हिंदुस्तानी जमात थी और इसमें सेक्युलर थी, इसलिए इसमें मसीही भी थे, पारसी भी थे, मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। और इसके जो उस वक्त के जमाने के मशहूर जो लीडर थे, T.L. स्लेटर, C.F. एंड्रयूज, E. ग्रेव्स, वर्नियर एल्विन और इसके साथ 200 मिशनरियों ने एक मैनिफेस्टो पर दस्तखत किए जिसमें बरतानिया से अपील की कि हिंदुस्तानियों के मुतालबात पर हमदर्दी से गौर करें। नाजरीन गौर कीजिए, जब यहाँ पर 200 मिशनरियों के इस डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है तो याद रखिए कि आज़ादी के लिए ये लोग जो वहाँ पर लोगों की मदद के लिए मौजूद थे, उनके दिल की बात कि इन लोगों के मुतालबात पर हमदर्दी से गौर किया जाए। ना सिर्फ उस वक्त के लोगों की मदद करते थे बल्कि मुस्तकबिल में उनकी नस्लों के लिए भी उन्होंने दर्द दिल के साथ ये अपील की थी। शुक्रिया मोहतरम हमीद साहब, जारी रखिए। और जो ये कहा जाता है कि मिशनरियों की हमदर्दियां हिंदुस्तान के साथ नहीं थी, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। C.F. एंड्रयूज ने आगरा में वर्ल्ड क्रिश्चियन एंडेवर में नौजवान से कहा, लव योर कंट्री विद द लव ऑफ क्राइस्ट। इससे ज्यादा बढ़कर और कोई मिसाल नहीं हो सकती मसीहियों के मुहब्बे वतन होने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे रिसर्च स्कॉलर F. हमीद साहब हमारे साथ हैं और आप तमाम अहबाब के सामने तारीख के औराक से वो सच्चाइयाँ ढूंढ कर लाए हैं जिनकी आज की नस्ल को ज़रूरत है, हुक्मरानों को ज़रूरत है, रहनुमाओं को ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आज के बर्रे सगीर के नौजवान को ज़रूरत है। हमीद साहब, और मैं जारी रखिए। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि गैर मुल्की मिशनरियों के बारे में एक बहुत ही गलत सोच लोगों के जहन में है। जो लोग मिशनरी बनकर इस मुल्क में आए, उन्होंने अपनी जिंदगियां हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए सर्फ कर दी और उनके देख हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए धड़कते थे। मैं इस वक्त हवाला दूंगा एक साहब का, विशाल मंगलवाडी। उन्होंने एक किताब तहरीर की कि बाइबल की वजह से हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो रौनक नजर आ रही है, हर एक शोबे में, कानून में, तालीम में, अस्पतालों के क़याम में, रेलवे के क़याम में, उन्होंने ये साबित किया है कि ये सब बाइबल की तालीम की वजह से है। इस किताब का नाम अगर मोहतरम आप बताना चाहें। इस किताब का नाम है द शेपिंग ऑफ इंडिया बाय द बाइबल। जी, ये किताब पढ़िए, मंगलवाडी की किताब है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम
अगले हफ्ते इसी मौजू को जारी रखेंगे और मेरी दरख्वास्त होगी कि हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ शरीक हों ताकि दीगर जो अहम सवालात हैं उन पर भी हम बात करते चले जाएं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हमीद साहब, हमारे आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, आप इसमें अगर बताना चाहें और फिर आप अपनी बात को अगले शो में जारी रखिएगा कि ये जो मसीही कायदीन हैं इनका नाम पाकिस्तान की निसाबी कुतुब में क्यों नहीं और हमें अकलियतें क्यों कहा जाता है? इसका जिक्र गिल साहब कर चुके हैं। सिर्फ मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा जी जरूर कि ये तो नजरी का माहौल बन गया है जो कि बढ़ती जाती है और जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ यानी अहदी, हिंदू और मसीहियों के खिलाफ आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। इनके किरदार का या तो जिक्र नहीं किया जाता किताबों से बिल्कुल निकाल के, अगर कभी किया जाएगा टेक्स्ट बुक्स में तो इनका नेगेटिव रोल बताया जाता है, इनको गैर मुल्की एजेंट कहा जाता है। निजी महफिलों में कुछ लोग जिक्र करते हैं लेकिन अखबारों में, किताबों में इनका जिक्र नहीं किया जाता। ये गोया एक अनरिटन सी पॉलिसी है, अनस्पोकन पॉलिसी है जिसका जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन हर सबको इसका पता है। एक साहब का मैं जिक्र करूंगा, मोहम्मद लतीफ साहब ने किताब लिखी कि लाहौर में मदफून गैर मुस्लिम शख्सियात, उन्होंने हिंदू और मसीही शख्सियात का और सिख शख्सियात का जिक्र किया है। उन्होंने बड़ी कुशादा दिली से इन लोगों की, जिन लोगों ने लाहौर के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, बड़ी कुशादा दिली से उनका जिक्र किया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रिसर्च स्कॉलर मोहतरम एफ हमीद साहब, जनाब खालिद गिल साहब। आने वाले शो में दोनों मेहमान हमारे साथ शरीक होंगे। हम तारीख के औराक को खोलेंगे और जानेंगे कि अर्ज़ वतन के क़याम, उसकी तामीर व तरक्की में मसीहों का किरदार। इस वक्त मेरी दरख्वास्त होगी एफ हमीद साहब से कि वो पाकिस्तान की सलामती तरक्की के लिए, आपके पास 30 सेकंड हैं हमीद साहब, एक दुआ फरमा दीजिए और फिर मैं नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। जी मोहतरम हमीद साहब। करना चाहता हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए और मोहब्बत, ये तो मसीही लोगों के ईमान का हिस्सा है। बाइबल मुकद्दस में फरमाया गया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी सलामती चाहो, उसके लिए दुआ करो, और यही दुआ तमाम मसीही चर्चेज में, पाकिस्तानी चर्चेज में तो बिलखसूस की जाती है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए। और यही मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का हर एक वासी, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, खुदा उसको खुशी बख्शे, इत्मीनान बख्शे, पाकिस्तान में तरक्की हो और वो अमन कायम हो जो सिर्फ मसीह यसू ही दे सकता है। आमीन। इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं, वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद पाकिस्तान को बरकत दे, आप तमाम साहबान को बहुत बरकत दे, सलामत रखे। इजाजत चाहता हूं, आपका मेजबान दानियाल।